तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ एक नई पार्टी के स्टूडेंट्स बोल लीजिए या यंग जनरेशन या फिर जेन जी जिनको बोलते हैं, उन्होंने मैसिव प्रोटेस्ट किया. व्हाट वुड बी योर मैसेज टू दिस जनरेशन? पाकिस्तान के लिए तो ये एक नेशनल पॉलिसी है कि हमने मिलिटेंट्स अंदर भेजने ही हैं इंडिया के अंदर. सर का जो एनकाउंटर हुआ, आपने हमें बताया कि वहाँ उसके बाद कश्मीर में 53 डेज के लिए कर्फ्यू लगा और 96 लोग मारे गए थे. जो कश्मीर 90 में था, जो कश्मीर 2004-05 में था, उससे अब तक बहुत सी चेंजेस हैं. पहले हर दिन ब्लास्ट होता था, पहले हर दिन किलिंग होती थी, आज वो बात नहीं है. हमारे जो जवान हैं फोर्सेस के, उनको देश को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया जाता है. आर दे ऑल्सो इक्वली प्रिपेयर्ड टू प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर? Every decision is a small bet, sometimes on discipline, sometimes on fear, sometimes on patience, in life and in money too. This is House of Equentis, where we look for wealth's deepest lessons inside life's biggest questions. Welcome everyone yet again to another interesting episode of House of Equentis. Today we have someone very, very special. Someone who's not just a leader, but someone who's believed in compassion being the first principle of leadership. I'm talking about someone who's been at the border, fought the enemy, and protected all of us watching so that we could sleep peacefully. Let us welcome Mr. Singh, and the details about his distinguished career will not only just inspire you, but I'm sure will leave lessons for life for all of us. Sir, welcome, and it's an absolute pleasure to have you today with us on the House of Equentis. Normally हमारे podcast start होते हैं achievement से, designation से, पर आपके केस में the list is genuinely extraordinarily long. 37 plus years of national service across BSF, intelligence, border management, NDRF, training and UN peacekeeping. But I don't want to begin with the medals of the rank today. I want to begin with the person behind the uniform. And before I begin, I also want to share a personal connection here कि शायद मैं अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज नहीं होता तो मैं भी आपकी तरह एक फौजी बनना चाहता था. मेरे ताऊजी श्री रामपाल आर्य मेरी लाइफ के एक अर्लीस्ट इंस्पिरेशंस में से रहे. He served as a soldier and then served the Delhi police also. So growing up, sir, मैंने देखा कि uniform was not merely something a person wore. It shaped the way they lived. They shaped others' lives with their discipline, commitment, courage, discipline, and most importantly, एक sense of duty, जो बहुत फर्क था किसी job में versus sense of duty में. तो I've seen that how does it shape one's personality. Sir, having you in experienced leadership positions and in situations जहाँ हम जैसे लोग सिर्फ imagine कर सकते हैं, from commanding a battalion on the line of control in the Rajouri Poonch region to serving in intelligence in Srinagar, leading disaster contingencies and representing India on United Nations. I want this conversation about life, about fear, courage, leadership, failure, relationships, and the choice that shape a human being. So let me start with something very simple, sir. When you look back at the young Sudhir Kumar Singh who first entered the force, how different was he from the man sitting in front of us today? Well, in my case, मेरे पूरे रिलेशन में कहीं पर भी मैंने किसी को यूनिफॉर्म में देखा नहीं था. तो मेरे लिए बहुत एक चेंज ऑफ फील्ड था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. बट मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर टेकिंग ऑन यूनिफॉर्म सर्विसेज जॉब और आफ्टर, देयर इज ए बिग सी चेंज आई हैव नोटिस इन माई सेल्फ. दो आई वॉज डिसिप्लिन्ड, ओबीडियंट, माई इंटीग्रिटी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी हाई. So all those things were there which are basic traits for a फौजी. But training matters. तो 1 साल की ट्रेनिंग, रिगरस ट्रेनिंग, और उसके बाद मैं अपने आप को पाता हूँ कि मैं पूरा का पूरा मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ.
जैसे मैंने बताया कि पहले भी मैं एक बोर्डिंग रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ा, तो मेरे अंदर ये सब बेसिक चीज़ें थीं, लेकिन मैं इसको पहचान नहीं पा रहा था। तो उसको उभार करके बाहर निकालने के काम, ये जो 1 साल की यूनिफॉर्म ट्रेनिंग हुई मेरी, उसमें मैं टोटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन हुआ। मेरा जो पेशेंस लेवल है बहुत बढ़ गया, मेरा एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा, टीम वर्क बहुत ज़्यादा मेरे अंदर आई। मुझे लोगों के हेल्प करना, देश के लिए कुछ भी करना है तो उसके लिए मैं हमेशा आगे हूँ। तो ये सब चीज़ें आई। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये भी मैंने नोट किया कि यूनिफॉर्म पहनने से या प्रोफेशन लेने से ही आपको खाली पावर है ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके साथ ऐड ऑन होती हैं। तो उसके लिए भी हर आदमी को तैयार रहना चाहिए। सर, आपने हमारे साथ शेयर किया कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपने बहुत ही एक प्लेन सा जवाब दिया था कि कुछ पेट्रियोटिज्म ऐसा कुछ खास नहीं है, जॉब चाहिए थी, जुनून नहीं था। इतना ऑनेस्ट होना, डू यू थिंक वाज इट अ बिग रिस्क एट दैट पॉइंट इन टाइम? मुझे लगता है हैविंग पुट इन अराउंड 40 years of service in the security of the nation, now I realize that probably it was a very big risk. बट उस टाइम जैसे मैंने बोला कि मैंने कभी किसी को यूनिफॉर्म सर्विसेज में कहीं रिलेशन में किसी को देखा नहीं था। आई हैड जस्ट डन माई MSc केमिस्ट्री, रिजल्ट वाज अवेटेड, आई वाज लुकिंग फॉर ए जॉब। तो मैंने ये एक फॉर्म किसी अपने दोस्त के कहने पे भरा। दिस वाज ए ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर्स पोस्ट, अच्छी हाईएस्ट पे स्केल थी। मैंने भरा। जब मैं बोर्ड में गया तो चेयरमैन साहब ने मुझसे पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन BSF? तो मैंने उनको बहुत प्लेन कहा कि मैं एक अच्छा जॉब देख रहा हूँ, दिस इज ग्रुप ए सर्विस, तो मैंने इसलिए अप्लाई कर दिया। तो इससे कनेक्टेड ये है कि उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने पूछी लोगों ने जो दूसरे बोर्ड मेंबर्स थे, उसमें भी मेरा जवाब बहुत प्लेन था। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक क्वेश्चंस एंड स्पेशलाइजेशन के जो आए उसको मैंने बहुत बेहतरी से जवाब दिया। एंड देन अगेन जब आज मैं देखता हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पैशन जो है वो कई बार प्रोफेशन ज्वाइन करने के बाद डेवलप होता है। तो मेरा जो एक एफेक्शन आया, जो मेरा ये सोच विचार बदली, देश सेवा के बारे में मैं बहुत गहराई से इन्वॉल्व हो गया, वो मैंने जब जॉब ज्वाइन कर ली तो वो मेरे पैशन में बदल गया, वो जुनून में बदल गया। इनिशियली इट मे नॉट बी देयर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट आई सी इज दैट यू हैड अ वेरी ऑनेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स जो आपको एक अपॉर्चुनिटी शायद मिली। लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में एक समझ ऐसी है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो तो शायद आप उसी को बड़ा बना सकते हो। बट आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हमें कि पैशन जो है वो ज़रूरी नहीं है पहले हो, वो आपको अपना प्रोफेशन ज्वाइन करने के बाद भी डेवलप हो सकता है। एंड आई थिंक इन योर केस इट्स अ क्लासिक एग्जांपल दैट हाउ a job requirement changed into one of the highest positions in country serving the nation. हाँ, one thing I would like to add in this कि जब मैं पहुंचा, जब सिलेक्शन के बाद बेसिक ट्रेनिंग के लिए पहुंचा मैं, हमारी BSF एकेडमी टेकनपुर ग्वालियर है, वहाँ पे, तो डे 1 में ही पता नहीं ये अंदर से क्या रियलाइजेशन आया कि मैंने एक प्लेज लिया कि नौकरी में आ गए हैं, जब तक रहना है तब तक मैंने हमेशा एक्सेलेंट ही करना है। तो आई हैव टू एक्सेल इन दिस फील्ड। और प्रोबेबली वही वो फिर वो पैशन, वो जुनून, वो जज्बा बन गया और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब भी ज़रूरत पड़ी तो मैं सबसे आगे लाइन में खड़ा था और मेरी एक सोच ये थी कि जो काम कोई कर सकता वो मैं भी कर सकता हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। So, जो करना है उसमें एक्सीलेंट रहना है। एक्सीलेंट रहना है। वेरी नाइस, इंटेलिजेंट, दिस इज सो इंस्पायरिंग। सर, आपकी पहली पोस्टिंग आपने हमें बताया अजनाला अमृतसर में थी। What was the experience like? We have heard that this was a dangerous military prone area. Yes, it was. It was 1988, अक्टूबर 1988 में मेरी पहली पोस्टिंग हो गई थी। पंजाब वाज बर्निंग, पंजाब वाज फुल ऑफ मिलिटेंसी, बड़ा पीक टाइम था मिलिटेंसी का। और यू नो बॉर्डर्स भी तब ऐसे नहीं थे। अभी बहुत सरकार ने बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो गए, बहुत चीज़ें नई लग गई। तो जब मैं पहले दिन ही पहुंचा एंड व्हेन आई वाज टेकन टू बॉर्डर, जब मेरे CEO ने आदेश दिया बॉर्डर जाने के लिए,
तो आई वॉज पासिंग थ्रू रावी नदी, दोनों तरफ से सरकंडे थे बहुत ऊंचे ऊंचे। तो पूरा का पूरा बॉर्डर एक उत्तर प्रदेश का बच्चा जो जा रहा है तो डेफिनेटली एक फीलिंग थी कि ये कहाँ पे आ गए। एंड इट वाज फुल ऑफ मिलिटेंसी, क्योंकि तब फेंसिंग नहीं थी, बॉर्डर फेंसिंग वाज नॉट देयर, सो क्रॉसिंग्स ऑफ मिलिटेंट्स वर देयर। बहुत सारे मिलिटेंट्स की वहाँ पे किलिंग हुई। मैंने 2 इंट्रूडर मारे, जो कि शायद उस ज़माने में अगर नहीं होता तो दे मे हैव एक्टेड एज ए लीड, वो गाइड का काम कर रहे थे। हमने गोल्ड बिस्किट्स का सीजर किया। मेरे एक सीनियर थे, वो छनमुला बीओपी पे थे, फतेहपुर, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मिलिटेंट्स की किलिंग में इन्वॉल्व रहे। हम लोग तो बिल्कुल नए थे। एक और सीनियर थे, उन्होंने जिंदा भी मिलिटेंट्स पकड़े। सो थिंग्स वर इंटायरली डिफरेंट। एंड मैं सेकेंड स्पेल में जब 89-90 में वी वर एयर लिफ्टेड टू दैट प्लेस, दैट इज खन्ना एंड बला। वो एरिया बहुत इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में था मैं, पूरा बहुत डिस्टर्ब था। तो हम लोग, आप सोचें कि हमें स्टेट गवर्नमेंट से हमें गाड़ियाँ मिली हुई थी, लेकिन हम जब मेन रोड हाईवे छोड़ करके जब अपने शेल्टर्स की तरफ जाते थे जहाँ रहने की जगह थी, तो हम लोग पैदल प्रीफर करते थे। गन्ने के बड़े बड़े खेत होते थे, उसमें से कब फायरिंग हो जाए, कब कहाँ क्या। बट आई वॉज वेरी अलर्ट एंड आई टुक रियल पेन्स। ट्रूप्स को भी ट्रेंड किया। मैं किसी ड्यूटी में चला गया था तो इट वाज वेरी सैड कि वहाँ पे एसपी हेडक्वार्टर वाज किल्ड, बिकॉज प्रोबेबली दैट पॉइंट वाज नॉट बीइंग कवर्ड इन जिस तरीके से हम लोग कवर कर रहे थे। तो ये सीन था उस वक्त। एज अ यंग ऑफिसर फ्रॉम यूपी एंड देन इन सच अ मिलिटेंट प्रोन एरिया, यू नो, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? एनिमी, ओवर कॉन्फिडेंस या अनसर्टेनिटी? ओवर कॉन्फिडेंस आपका खुद का, अनसर्टेनिटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट व्हाट डू यू थिंक आउट ऑफ दीज थ्री? आउट ऑफ दीज थ्री, एज अ लीडर, एज अ यूनिफॉर्म फोर्स पर्सनल, आई वुड से दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखिए, एनिमी इज विजिबल, एनिमी तो आपको पता है कि क्या एनिमी है। अनसर्टेनिटी हैज़ टू बी देयर, दैट इज पार्ट ऑफ योर जॉब। ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है कि आपको इट वॉन्ट अलाउ यू टू टेक करेक्ट डिसीजन, आपको इंटरपर्सनल स्किल तोड़ देगा। एक फ्लेक्सिबिलिटी इन कमांड इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द लीडरशिप। तो वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखने नहीं देगा। आप नीचे वालों की बात, एडवाइजर जो लोग आपको थोड़ा गाइड करते हैं, उनकी बात आप सुनने को तैयार नहीं हो। जजमेंट्स आपके हमेशा गलत होंगे। So the most dangerous thing is overconfidence. I think you're absolutely right, because at least we've also realized that in personal and professional lives, you know, perhaps it's not just about losing, it's about the repeated success that makes you feel कि आप शायद हार नहीं सकते हैं। Yes. तो वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है, जैसा आपने बोला कि आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, शायद कहीं ना कहीं उसको गलत हो जाती है। ब्रिलियंट सर। तो सर ये बताइए कि आपने टेररिस्ट्स, बॉर्डर क्रिमिनल्स और हॉस्टाइल सिचुएशंस फेस की हैं, लेकिन क्या करियर में भी कभी आपने सिस्टम से लड़ना एनिमी से ज़्यादा डिफिकल्ट पाया? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने अभी थोड़ी देर में ही बताया कि एनिमी तो क्या है कि सूनर और लेटर एनिमी इज विजिबल टू यू, बट सिस्टम से जब लड़ाई होती है तो सिस्टम में वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है, दैट इज इनविजिबल। एंड आप अपने ही लोगों से, अपने ही सिस्टम से लड़ नहीं सकते। फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। बट इसका बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल है कि जब मैं डिप्टी कमांडेंट था तो मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो पे था, और मेरे जो इमीडिएट बॉस थे उनको, वो शायद मुझे किसी न किसी कारण से, प्रोबेबली ही हैड सम रिजर्वेशंस विथ मी, तो इनिशियल स्टेज पे तो मुझे वो पसंद नहीं करते थे। तो मुझे बहुत सारा जो काम वगैरह जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिलता था। मैं डेली घर जाता था और घर जाते जाते मैं फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन से भर जाता था। तो मैं घर में अपनी स्पाउस से, अपनी वाइफ से कहता था कि यार मैं लिख के दे देता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, एंड आई एम डन विद दिस। बट देन नेक्स्ट डे होते होते मैं वो पॉजिटिविटी ले करके आता था कि नहीं, आज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा दैट आई एम द बेस्ट, आई एम वन ऑफ द बेस्ट।
तो वो मेरी लड़ाई कुछ महीनों चली एंड एक्चुअली आई टर्न द टाइड एंड वही बॉस मुझे बहुत ज़्यादा मानने लगे मेरे काम को, मेरे बिहेवियर को, मेरे प्रोफेशनलिज्म को देख करके। तो मैं ये मेरा ये मैसेज है टू एवरी वॉचर ऑफ दिस पॉडकास्ट कि जब भी ऐसा हो तो निगेटिविटी शुड नॉट प्रिवेल। आपको पॉजिटिव थिंकिंग लानी है। सिस्टम में आते हैं आपके कई लोग होते हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हेन वी वर्क इन द ऑफिस, तो उसको परमानेंट नहीं मानना है एंड वी शुड मेक ऑल आउट एफर्ट्स कि कैसे हम उसको पॉजिटिव उसमें बदलें। सो दिस कैन बी डन। वेरी नाइस सर। हैव यू पर्सनली एवर डिसएग्रीड विद अ सीनियर लीडर? जैसे कई बार हम मूवीज में देखते हैं कि यू नो इन पोजीशंस लाइक योर्स द गवर्नमेंट वांट्स टू डू समथिंग एल्स इन अ डिफरेंट वे, द मिनिस्टर्स वुड वांट टू डू इन अ सर्टेन वे, बट द फोर्सेस वो तो एकदम ज़मीन में है, वो सेंटर में है, उनको दिखता है कि यहाँ से गोली आ सकती है यहाँ से। कोई ऐसी चीज़ या वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो शायद आप डायरेक्ट अग्रीमेंट नहीं था बट देन इट वाज द राइट डिसीजन लेटर? Many times, at many forums it has come while in service, बट मेरा अपना एक तरीका था। जब भी हम फोर्सेज में किसी इस तरीके, तो वी मस्ट पुट आवर सबमिशन वेरी कामली, बहुत डिसेंट तरीके से हमने अपनी बात कहनी चाहिए। हम अपनी बात अपने लेवल पे कहते हैं, जो कमांडर होता है उसका, जो मुझसे सीनियर होगा उसका विजन मुझसे ज़्यादा होगा, हो सकता है वो मुझसे कुछ और वो उनकी सोच में हो, बट हमारी जो रिजर्वेशंस हैं, जहां हम डिसएग्रीमेंट में हैं, वो हमें उनको बताना चाहिए। उसको लेना नहीं लेना इज हिज पर्सपेक्टिव, वो अपने तरीके से उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत बार हुए, हमने किए भी उसको। सर, जब आपके आसपास पहली बार शूट आउट हुआ होगा, गोली चली होगी, डू यू रिकॉल दैट मोमेंट? हाउ वाज द फीलिंग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑपरेशन विजय हुआ था, कारगिल वार। इट वाज मई 99, मई जून जुलाई 99। उसको ख़त्म होने के बाद मेरी यूनिट चली गई थी गूल। गूल इज़ ए प्लेस इन धामकुंड एरिया, रामबन, बिड्डा, इसके आसपास रिमोट एरिया है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी। आई एम टॉकिंग ऑफ 99-2001। उस एरिया में एक हमारे सीओ साहब, लेट श्री SS धैया, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी ऑफिसर थे, BSF में थे। हिज जिप्सी वाज ब्लोन इन 2001। हमारा एक यंग ऑफिसर, असिस्टेंट कमांडेंट उमाशंकर प्रसाद, ही वाज किल्ड बाय द मिलिटेंट्स एंड ऑलमोस्ट एवरी डे वहाँ पे फायरिंग होती थी। स्टैंड ऑफ फायर, अगर हमारा इफेक्टिव नुकसान नहीं है तो वो दूर से ही हमको फायर करके भाग जाते थे। कच्चा रोड था, तो एक कंथा मोड़ एक जगह थी, वो बहुत आईडी प्रोन था, और एक गुल्लू बीजर गुर्जर, बिल्लू गुर्जर वाज दी नॉन आईडी एक्सपर्ट मिलिटेंट था, उसका यही काम था। तो प्रिसाइजली इट वाज अक्टूबर 99, करवा चौथ का दिन था। हमारे सीओ साहब और उनकी पत्नी दोनों लोग जो है उस दिन गूल जा रहे थे। उन्होंने मुझसे भी कहा कि सुधीर तुम चलो, क्योंकि उनका बेटा और बहू आए थे। बेटा उस समय उनका मेजर था आर्मी में। हम लोग चले और ये रास्ता पत्नी टॉप से होके रामबन जाके उधर से जाते थे। तो उनके साथ एक रोबर था, वो रास्ते भर ही वॉज ओवर एक्साइटेड, क्योंकि उसको ये कैसे टेक्टिकल गलतियां भी इसमें आएंगे निकल के। तो देयर वाज ए कोड वर्ड फॉर दी CEO एंड CEO की वाइफ के लिए। वो अपनी भाषा में राजा रानी आ रहे हैं, राजा रानी आ रहे हैं। हम लोग धामकुंड में पहुंचे। धामकुंड बिल्कुल रिवर बेड पे है, और वो CEO साहब जो वहाँ के थे, वो इस CEO साहब के बैचमेट थे, दोस्त थे। वी हैड लंच, और जैसा मैंने बताया कि एरिया बहुत मिलिटेंसी इन्फेस्टेड था। जब हम लोग फिर वहाँ से हमारी जिप्सियाँ चढ़ीं, तो वो चढ़ाई करके गूल की पहाड़ियों पे जाना था। तो जैसे ही हम लोग कंथा मोड़ के आसपास पहुँचे आए, तो कभी हमने सोचा नहीं था कि कोई आरोपी लगी हुई थी, ऐसा होता था। बट एकाएक बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ। नथिंग वाज विजिबल, टोटल डस्ट, और चारों तरफ स्टोन्स, पैलेट्स, कुछ समझ नहीं आया थोड़ी देर के लिए, मोमेंट्री। एंड सब लोग गाड़ियों से कूदे, गार्ड्स थे हमारे पास काफ़ी।
दौड़ भाग मची चारों तरफ हम लोग, बट हम किसी को ट्रेस कर नहीं पाए। काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद भी कोई हमें मिला नहीं। हमने नोट ये किया कि हमारे 2 जवान बुरी तरीके से घायल हो गए थे और एक पेड़ के ऊपर एक पॉलीथीन, वाइट पॉलीथीन बंधा हुआ था। वो इस बात का इंडिकेटिव था कि क्या है कि उस एरिया में उन लोगों ने आईडी कच्चा रोड होने से पहले से दबा के रखते हैं और वो रिमोटली ऑपरेट करना होता है। तो वो अलाइनमेंट के लिए वो वाइट पॉलीथीन जो लगाया था उन्होंने पेड़ में, और दूर से कि हमारी जिप्सियाँ जब उसके अलाइनमेंट में आएंगी उनको पता लग गया, क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन हो रहा था उससे पता लग रहा था, दूसरा उन्होंने विजुअली धामकुंड लोअर उस पे था, ऊपर से हाइट्स पे रहते हैं मिलिटेंट्स, उन्होंने देखा था। तो वो ट्रिगर किया स्लीपिंग सेल से या जो भी उनका सपोर्टर रहा होगा, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं। बट थैंक्स गॉड कि हम लोग उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी उस एरिया में हमें सफलता मिली। मेनी मिलिटेंट्स हैव बीन किल्ड, तो बहुत सफलता रहा। वेरी इंटरेस्टिंग सर, एंड इट्स स्कैरी एट द सेम मोमेंट। यस, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी रास्ते पे एंड एवरीथिंग, ये क्योंकि ये चीज़ें हम लोग बीइंग अ सिविलियन वी डोंट एक्सपीरियंस दीज, हम तो जो देखते हैं वो न्यूज़ में देखते हैं। नहीं, इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एरिया एज फार एज मिलिटेंसी वाज कंसर्न, और उतनी ही बीएसएफ की जितनी भी बटालियन लगी उन्होंने मिलिटेंसी को कंटेन करने में उतना ही अपना सहयोग दिया, उतना ही अपना योगदान दिया। वी हैड अचीव फ्यू sacrifices also, but national interest में that was probably warranted. Interesting. Sir, just extending this, जम्मू में, कश्मीर में स्पेशली हम लोग जब सुनते हैं कि you know militants cross the border through some cross border tunnels etc., और इतनी सर्वेलेंस के बावजूद इतनी हमारी फोर्सेस वहाँ तैनात हैं एंड फिर भी पुलवामा अटैक हुआ एंड you know the whole country was shocked you know of what brutalism happened to the civilians. तो इसमें you know can you share that what is the truth, मतलब on ground क्या हो रहा है, how is the force ready, and you know for a common man you know how is it, I mean it's very easy to get anxious, to get excited, but do you have a message for the country that you know the ground reality is taken care of, और इस challenge को हमारी forces कैसे you know face कर रही हैं? देखिए, ये प्लेन शब्द में अगर कहेंगे तो ये चोर सिपाही का गेम है। तो जो चोर है वो नए नए तरीके ईजाद करता है। सिपाही जो है पहले से तो अलर्ट रहते हैं, लेकिन जब नया तरीका मिलता है तो फिर उसको कैसे काउंटर करना है वो फिर करता है। तो जम्मू बॉर्डर पे तो एग्जैक्टली ऐसा है। भारत सरकार ने बहुत कुछ किया है, देश की सेना ने, देश की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है। पहले फेंसिंग लगी, फेंसिंग पहले नहीं हुआ करता था, हमने होम मेड फेंसिंग लगाई 2001 में। बहुत बीएसएफ के लोगों का नुकसान, मतलब इंजरी हुई, बहुत चीज़, लेकिन मतलब वो हमें डिटर नहीं कर सका, हम आगे बढ़ते रहे। अभी वहाँ प्रॉपर फेंसिंग हो गई। जब प्रॉपर फेंसिंग हो गई, लाइट्स लग गए हैं, हाई मस्ट लाइट्स हैं, तो पाकिस्तान के लिए तो ये एक नेशनल पॉलिसी है कि हमने मिलिटेंट्स अंदर भेजने ही हैं इंडिया के अंतर्गत। तो इन्होंने इक्का दुक्का टनलिंग का प्रोसेस किया, जो कि 12-13 से निकलना शुरू हुआ। तो जब टनल का पहला टनल हम लोगों ने डिटेक्ट किया बॉर्डर पे, तो इट वाज एन आई ओपनिंग, क्योंकि ये बगैर पूरी की पूरी नेशनल पॉलिसी के बगैर नहीं हो सकता है। इसमें साइंटिफिक एक्सपर्ट्स भी होंगे, जियोग्राफी होंगे, जो मशीनिस्ट होंगे, टूल्स होंगे, सब कुछ होगा, बहुत सारा चीज होगा। तो इट इज नॉट ओनली मिलिटेंट, इट हैज अ बैकिंग ऑफ द इंटायर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हमने अपनी तरीके से फेंसिंग के साथ साथ हमने फेंसिंग के आगे डिचेज बनाए। उन डिचों में हम पानी भर के रखते हैं ताकि इस तरीके के टनल कामयाब ना हो। फिर हमने देखा कि उन्होंने डेप्थ बढ़ा ली, तो हमने एक्सकेवेटर्स लाए। हमने पूरे एरिया को मार्क कर रखा है कि बेचारा हाईली प्रोन कौन से हैं, कम से कम प्रोन कौन है। हम सेकेंड टियर में गए, हमने लाइट्स लगाए, हम हाई मास्ट लगाए हैं। फिर भी वन ऑड स्टे इंसिडेंसेस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एंड सिमिलरली ऐसे ही कश्मीर में है, हाई जो LOCs हैं, LC हैं, पूरे टाइम बर्फबारी होती है, हमारे लोग लगे हुए हैं, सारी प्रिकॉशंस हैं, बट इक्का दुक्का ऐसा चीज़ होता रहता है। बट
national security is well taken care of. सर बुरहान वानी का जो एनकाउंटर हुआ, आपने हमें बताया कि वहाँ उसके बाद कश्मीर में 53 डेज के लिए कर्फ्यू लगा और 96 लोग मारे गए थे। वो कश्मीर था और आज का कश्मीर है। व्हाट डिफरेंस डू यू सी? बहुत डिफरेंस है। देखिए, बुरहान वानी जो था, ही वॉज किल्ड ऑन 8 जुलाई 2016. आई वॉज देयर इन श्रीनगर ओनली एंड ही वॉज द फर्स्ट मिलिटेंट जो कि कश्मीर का लोकल मिलिटेंट था और जिसकी पॉपुलरिटी विद इन नो टाइम बहुत बढ़ गई। ही वॉज नोन एज पोस्टर बॉय बिकॉज फर्स्ट टाइम उसने सोशल मीडिया का यूज़ किया था और वो लैपटॉप में सोशल मीडिया का यूज़ और वो फोटोग्राफ्स, उनके साथ के जो 9 लोग 11 लोग थे, बाद में सारे एक एक करके मारे गए। तो जो तब का जो कश्मीर था, फुल ऑफ स्टोन पेल्टिंग, एवरी डे स्टोन पेल्टिंग, कहीं ब्लास्ट है कहीं कुछ है, तब का कश्मीर और आज के कश्मीर में बहुत डिफरेंस है एंड दैट इज़ अचीविंग ग्रेटर नॉर्मलसी। नॉर्मलसी के साथ साथ बहुत सारे आप देख रहे हैं डेवलपमेंट्स बहुत हुए हैं। आप खुद जज कर सकते हैं जिस हिसाब से वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है। हमारा चिनाव रिवर के ऊपर जो है ये ट्रेन जा रही है, वंदे भारत ट्रेन जा रही है, टनल्स कितने सारे बने हैं, लोगों में एक बात आ गई है एंड पीस इज़ नॉट ओनली स्टॉपिंग वायलेंस, पीस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट्स। तो बहुत सारी तरक्कियाँ हो रही हैं, बट इट इज़ वन वर्ड में हम कह सकते हैं कि इट इज़ अचीविंग ग्रेटर नॉर्मलसी। बट सर अभी रिसेंटली भी, अभी आई थिंक हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी एक इंसिडेंट हुआ, टेररिस्ट्स ने एक सिविलियन, 2 सिविलियंस को अटैक किया एक्चुअली, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आई एम श्योर सडनली देयर वाज अ स्पाइक इन एंग्जाइटी अराउंड द कंट्री कि इतनी सर्वेलेंस होने के बावजूद भी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी है स्टेट और सेंटर में, वो भी चल ही रही है कि उनको स्टेटहुड, दे अगेन एंड अगेन से कि हमें स्टेटहुड दीजिए एंड द सेंटर फॉर व्हाटएवर गुड रीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री might not be proceeding. What's your take on that? मेरा ये समझना है कि your question is in 2 parts. Right. One is this kind of militancy related 1 or 2 odd incidents. ये तो देखिए अभी ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनके बहुत सारे यहाँ पे स्लीपिंग सेल्स होते हैं, डॉर्मेंट मिलिटेंट्स होते हैं या जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, तो जो लोग उन आइडियोलॉजी में अभी भी बिलीव कर रहे हैं। लेकिन पहले से जो कश्मीर 90 में था, जो कश्मीर 2004-05 में था, उससे अब तक बहुत सी चेंजेस हैं। पहले हर दिन ब्लास्ट होता था, पहले हर दिन किलिंग होती थी, आज वो बात नहीं है। तो आज 3 महीने में 6 महीने पे कोई ऐसा एक इंसिडेंस हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब कश्मीर में मिलिटेंसी उसी हिसाब से चल रही है। इसमें भारत सरकार का बहुत योगदान है, इसमें आर्मी का, पुलिस का, लोकल पुलिस है, पैरामिलिट्रीज हैं, बीएसएफ है, बहुत योगदान है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने शहादत दी है, लोगों को इंजरीज हुई हैं। तो दैट इज़ वन। और इतने बड़े देश में, इतने बड़े स्टेट में इस टाइप का एक तो एक्सेप्टेबल तो हम नहीं कहेंगे, बट फिर भी जब हमारा पड़ोसी इस तरीके का है तो ऐसा 1-2 केस चलेगा। दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ प्योरली पॉलिटिकल। तो एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद बहुत चीज़ें, हालात बदली हैं, बहुत सारी पावर्स ऐसी आई स्टेट में जो कि इन चीज़ों को कर्व करती हैं। तो ये आगे आने वाले दिनों में सेंटर एंड स्टेट डिसाइड करेगा, भारत सरकार डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है सर, शिफ्टिंग गियर्स फ्रॉम बीइंग एज एन एक्टिव सोल्जर एंड लीडिंग ट्रूप्स, we want to shift to some of the leadership lessons that make our force one of the greatest forces, and you have been at the helm of leadership positions. सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपने तकरीबन 2.5 लाख 2.5 लाख लोगों को के रिलेटेड पर्सनल मैटर्स हैंडल किए, दैट बिग ऑफ अ फोर्स यू हैड। इतने बड़े फोर्स में एक इंसान को या एक सोल्जर को एक रिसोर्स बनने से कैसा बचाया जाता है? मतलब हाउ डू यू ट्रीट दैट ह्यूमन एज मोर ऑफ अ ह्यूमन? देखिए, लीडरशिप तो है, मतलब लीडरशिप इज़ रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ ऑर्डर्स है, आपको कंप्लायंसेस चाहिए, सब चीज़ है, बट इन सब के बावजूद ह्यूमैनिटी इज़ द फैक्टर विच इज़ इंडिस्पेंसिबल। सो आपको
one must maintain the personal relation, looking after small problems of people. तो ये सब करने से वो आपके सिस्टम के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा रिसोर्स बनता है बंदा. एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ कमांड्स फॉर ए लीडर. वन इज़ यू आर कमांडर, जिसमें केवल आपके ऑर्डर चलते हैं, लोग आपको सल्यूट कर रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, वन साइडेड स्टोरी है. एंड दैट इज़ मैंने अपना नाम दिया उनको कि फोर्स्ड कमांडर. तो वो बिल्कुल विद एज पर प्रॉपर, मतलब यू हैव बीन फोर्स्ड टू ओबे दैट कमांड. लेकिन दूसरा जो है मोटिवेटेड कमांड. करेक्ट. मोटिवेटेड कमांड में क्या है कि अगर आपने बंदे को, लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को आपने मोटिवेट कर लिया, तो आपका आउटपुट या सिस्टम का, कंपनी का आउटपुट विल बी मच मोर हायर. तो आपको वन शुड एम, द लीडर शुड एम ऑन हैविंग द मोटिवेटेड कमांड बाई इक्वली मेकिंग देम, आपके स्टेक होल्डरशिप में उनको भी थोड़ा सा रखें, उनकी भी बातें पूछें, उनसे समझें. और कई जगह पे उनको लगना चाहिए कि हमारी भी बात मानी जा रही है, प्रोवाइडेड दे आर गिविंग गुड सजेशंस. लेकिन सर, जिस तरीके के रोल में आप रहे, आई मीन इन डिजास्टर रिस्पॉन्स, जब चारों तरफ केओस होता है, अब कहीं अटैक हुआ तो सबसे पहले पूछा जाएगा कौन काम नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन देयर इज केओस ऑल अराउंड, अ लीडर लाइक यू, व्हाट वुड ही सेव फर्स्ट? वुड ही सेव अपने लोगों को बचाएंगे, या अपने मोरल्स को बचाएंगे, या सिस्टम को बचाएंगे? देखिए, कोई भी लीडर होगा, पहली बात तो जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसका मोटो ही है कि सेविंग लाइफ्स बियॉन्ड, सेविंग लाइफ्स एंड बियॉन्ड. तो उसका प्रथम कर्तव्य ही है कि लाइफ को बचाना है. और ये जो तीनों चीज़ें आपने कही हैं कि सेविंग लाइफ, मोटिवेशन एंड द सिस्टम, मोरल एंड द सिस्टम, कोई भी अच्छा लीडर होगा वो कभी भी इनमें से एक को पिकअप नहीं करेगा, बिकॉज ऑल 3 आर इंटरकनेक्टेड. लेकिन हाँ, चूंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस, लाइफ इज वेरी प्रीशियस, तो फर्स्ट अटेम्प्ट हैज़ टू बी ऑन सेविंग द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. आप जान बचाएंगे तो आपकी टीम का भी, लोगों का भी ऑटोमेटिकली मोरल बढ़ जाएगा. फिर सिस्टम अपने आप ही काम करना, अच्छा काम करना शुरू करेगा. वेरी इंटरेस्टिंग. सर, 37 ईयर्स की आपकी सर्विस रही है, उसमें मेडल्स हैं, कमेंडेशंस हैं, एंड सीनियर रैंक्स के बाद रिटायरमेंट की फर्स्ट मॉर्निंग, हाउ डिड यू फील? कौन थे आप जब यूनिफॉर्म और डेजिग्नेशन दोनों ही सामने नहीं थे? जब दोनों ही सामने नहीं थे तो मैंने आपको शुरू से कहा कि जब मैं इस सर्विस में आया तब भी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि जब तक रहूँगा बहुत अच्छे से रहूँगा. तो जब मैं पहली बार पंजाब जा रहा था तो जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पे एक कोट लिखा हुआ था. वो मैंने सुबह वहाँ उठ करके देखा जब ट्रेन से, तो उसमें लिखा हुआ था कि इट इज़ नाइस टू बी इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नाइस. आई विल रिपीट अगेन, इट इज़ नाइस टू बी इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नाइस. तो ये मैंने अपनी डायरी में उसको लिखा, और मैं हर जगह अपने ऑफिस वगैरह में भी अपने उसको एज ए कोट उसको यूज़ करता था. ये चीज़ मेरे दिल पे बहुत एवर लास्टिंग इम्प्रेशन लेकर के रही. और मैं पूरी सर्विस में हमेशा बहुत ही प्रोफेशनलिज्म अपने जगह पे थी, कमांडरी लीडरशिप अपने जगह पे थी, लेकिन मेरी ह्यूमैनिटी, मेरा अपना मानना है कि आदमी को इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है. सो आई टेक माई सेल्फ कि मैं बहुत अच्छा, मतलब इमोशनल हूँ, एंड आई टेक इट एज ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड. तो मैंने पूरी सर्विस में ऐसा रखा. मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि मैंने हमेशा माना कि रैंक इज़ टेम्पररी बट वैल्यूज आर परमानेंट. वाह. तो बिफोर ज्वाइनिंग बीएसएफ यूनिफॉर्म सर्विस, तब भी मैं तकरीबन ऐसा था. पूरी सर्विस में जब मुझे बहुत पावर मिली, बहुत पावर रहा, तब भी मैंने हमेशा अपने आप को एक विद इन कंट्रोल रखा. मैंने कभी अपने वर्दी का रौब कहीं नहीं दिखाया. तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं जैसे सर्विस में था, सर्विस में ऑफ कोर्स ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करते समय वो पावर्स और वो रैंक काम आई, लेकिन घर में, रिलेटिव्स के बीच में, दोस्तों के बीच में, सो आई एम द सेम हस्बैंड, आई एम द सेम फादर, आई एम द सेम पर्सन. और मेंटली भी मैं धीरे धीरे तैयार हो रहा था, बिकॉज हमारे पुराने जो
बॉसेस थे, डीजी साहब थे, उनका ये कहना था कि भाई वन थिंग इज़ वेल नोन टू एवरीबडी एंड दैट इज़ योर डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो उस डेट ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से एज ऑफ नाउ जैसे हमारी 60 ईयर्स है, तो आप धीरे धीरे प्रिपेयर होते हो कि मुझे इस डेट को रिटायर होना है। तो मैं रिटायर्ड था और मुझे कोई भी ऐसा, हाँ मतलब मैं अब जो थोड़ा फ्रीडम है, आई एम एंजॉइंग दैट फ्रीडम, सो उस तरीके का मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई। तो आई एम वेरी हैप्पी पर्सन। हैप्पी कंटेंटेड। यस, हैप्पी कंटेंटेड। बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बीएसएफ ने बहुत सपोर्ट किया, सरकार ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ अच्छा, आई ओ ऑल माई सक्सेस टू माई सीनियर्स, माई कलीग्स एंड टू माई जूनियर्स, बिकॉज मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। जो कुछ भी मैंने अचीव किया, बहुत अचीव किया, लेकिन ये सब कुछ मेरे जूनियर्स, मेरे सबऑर्डिनेट्स, मेरे साथी, मेरे से सीनियर्स, उन सब की गाइडेंस से, उन सब के कोऑपरेशन से हुआ। That's so sweet of you, sir. बहुत कम लीडर्स होते हैं जो शायद एक्नॉलेज करते हैं कि बीइंग इमोशनल इज़ द राइट थिंग, बिकॉज शायद आजकल के लीडरशिप स्कूल्स में ये ज़्यादा सिखाया जाता है कि हाउ यू शुड बी मोर प्रैक्टिकल, और यू कुड से हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच टूवर्ड्स with respect to the emotions and practicality. But I think in the scheme of things that you have operated, जहाँ 2.5 लाख जवान भी आपको रिपोर्ट करते थे, एंड आप इतने हाई इनफिल्ट्रेटेड जोन्स में थे, टेररिस्ट इन्फेस्टेड जोन में थे, कि आपको शायद इमोशनल होना आपकी एक the major arsenal was being emotional. But could you recall any instance जहाँ शायद आपको लगा कि आपके इमोशनल डिसीजन की वजह से ही जो आपको सक्सेस है वो प्राप्त हुई? बिकॉज यूजुअली इन रियल वर्ल्ड वी सी दैट प्रैक्टिकलिज्म टुडे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो बहुत लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं. वुड यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस? हाँ, मतलब देखिए, पहले हम लोग सुनते थे कि IQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंटेलिजेंस कोसेंट, सेकंड हो गया EQ, इमोशनल कोसेंट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमोशनल होने का मतलब कि आप इमोशनल होना डजंट मीन दैट यू डेविएट फ्रॉम योर चार्टर ऑफ ड्यूटीज. आपने अपना जो ड्यूटी का रोल है वो निभाना है, बट इमोशनल इज कहीं ना कहीं लिंक्ड विद कंपेशन. अगर आपके अंदर कंपेशन नहीं है तो मैं अपने जवान की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता. Exactly. वो कह रहा है कि साहब मुझे अपने घर जाना है, मेरा फादर डेथ बेड पे है. अगर मेरे अंदर कंपेशन नहीं होगा तो मैं उसको छुट्टी नहीं दूंगा. सिविलियंस आते हैं, कई बार उनकी बॉर्डर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो हमें उन चीज़ों को वैल्यू देना है. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब मेरे हिसाब से फैमिली में, समाज में जितनी बॉन्डिंग है वो सभी इमोशन की वजह. अगर इमोशन नहीं होगा तो विल नॉट बी लविंग आवर चिल्ड्रन. तो इमोशनल तो होना है, बट किस प्रपोर्शन में, कितने रेशियो में, वो है. और कमांडर हैं, अगर मैं लीडर हूँ तो आई शुड बी एबल टू ओवरकम दोज इमोशंस इफ इट इज कमिंग इन रूट टू डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज. सो देयर इट कांट बी कंप्रोमाइज्ड. करेक्ट. अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़नी है, अगर दुश्मन को मारना है तो सबको मारना है. वहाँ इमोशन का मतलब मेरा नहीं है. मतलब ये है कि कंपैशन की फीलिंग लीडर में होना बहुत जरूरी है. Sir, just extending this question, I'm sure you would have noticed, again this is more to address the younger generation today. We saw a massive protest in the country. तो ये जो protest हुआ, एक नई पार्टी के कुछ स्टूडेंट्स बोल लीजिए, या यंग जनरेशन, या फिर जेन जी जिनको बोलते हैं, उन्होंने मैसिव प्रोटेस्ट किया. और हमने ये देखा कि किस तरीके से उनकी जो डिमांड्स थी शायद वो मानी भी गई किसी हद तक, और किसी हद तक एक न्यूट्रल पोजीशन पे भी आया गया. बट व्हाट वुड बी योर मैसेज टू दिस जनरेशन, और आई वुड से द यंग पीपल who are wanting to get things differently, or maybe they feel that some things could be achieved in a better way, or I want to understand, as a leader who has led maybe that huge of a force, what was your take on this recent protest? देखिए, जनजेड को मतलब अब तो हमारे बड़े से बड़े देश के लीडर ने भी कह दिया है कि दे आर वेरी सेंसिबल, उनकी बात सुननी चाहिए. एंड जो जनरेशन्स हमने अपने फादर साहब, अपने ग्रैंडफादर के साथ हमने जो कस्टम्स, एटिकेट्स निभाए हैं, वो हम अब अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते. जनजेड भी उसी तरीके से डिफरेंट थोड़ा बिहेव करती है. दैट डजंट मीन कि दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर देयर पेरेंट्स, ऐसा नहीं है. तो उसी तरीके से ये जनजेड है. लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जनजेड
should also adopt to the norms of being disciplined. देखिए, एक अच्छा डिसिप्लिन होना, अच्छे मैनर में, मेरा पूरी सर्विस में ये मानना रहा कि हम अपनी बात को बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही डिसेंट तरीके से विद इन दी प्रीमाइसेज ऑफ रूल्स भी अपनी बात को रख सकते हैं और वो बात मानी जाएगी। तो जो अभी के जो प्रोटेस्ट में बहुत सारी ऐसी कुछ वल्गरिटीज आई, कुछ ऐसी चीज़ें, उनको अवॉइड करना चाहिए और अपनी बात के लिए अवेयर होना इज ऑलवेज ए वेरी वेलकमिंग स्टेप। अपनी मांगों को मांगना, समझना इज ऑलवेज टू बी वेलकम्ड। ग्रेट सर। सर, कमिंग टुवर्ड्स आपने एक कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग की थी कि हाउ ट्रेनिंग प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। तो हमारे जो जवान हैं फोर्सेस के, उनको देश को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया जाता है। आई एम श्योर विद ऑफिसर्स लाइक यू, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। बट टेल मी, आर दे ऑल्सो इक्वली प्रिपेयर्ड टू प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जवान हैं वो 24/7/365 डेज वो बॉर्डर पे तैनात है। उसका एक ही काम है कि देश की अक्षुण्णता, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, उसको बरकरार रखना। अदर देन हिज छुट्टी प्लान, कोई बीमार हो गया, ऐसे कोई हालात हुए। लेकिन आई डू फुल्ली एग्री विद यू कि उन्हें अपने फाइनेंसेस को संभालने के लिए ना तो उनके पास कोई जानकारी है, ना उनके पास वक्त है। दे आर नॉट अवेयर, नीदर दे आर अवेयर नॉर दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ देयर ड्यूटी आवर्स। तो हमारा सिस्टम, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बीच बीच में इस तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम 1-2 बार काफ़ी चला था, लेकिन बहुत ज़्यादा वो अचीव कर नहीं पाए अपने गोल को, प्रोबेबली बिकॉज अगेन कि जो हमारा लोअर एचलॉन है उनके पास इतना समय नहीं है, इतनी समझ नहीं है जी। तो मैं समझता हूँ कि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज को, CAPF, सभी पुलिस फोर्सेज को इस तरीके का एक प्रॉपर अभियान चलाना चाहिए। चलाया भी जाता है, लेकिन इसको और ऑर्गेनाइज तरीके से, इंस्टीट्यूशनलाइज कर करके इसको एक चलाना चाहिए, ताकि जवानों को ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसका एडवांटेज मिल सके और वो अपने बच्चों के, अपने परिवार का जो फ्यूचर है उसको अच्छी तरीके से शेप अप कर सके। 100% sir, and that's what we at Equentis are wanting to do. In fact, not only for people who are staying in metros or sub towns or villages, but we really want to ensure that all the forces at least that the country has, and people who are at the borders or at different मुश्किल पोजीशंस में जो लोग हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हम कैसे we can become a trusted partner, take care of their family's future, take care of their kids' education. बिकॉज वेल्थ प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी, जैसे आपने बोला कि एक ट्रेनिंग उनको बॉर्डर पे देश की सुरक्षा के लिए दी जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव फैमिलीज टू टेक केयर ऑफ, सो वी वुड वांट टू प्ले एन एक्टिव रोल एंड विद योर support we would want to take it ahead. Coming to the end of this conversation, sir, which is very very interesting, I don't feel like ending it, but I would want to summarize it. We'll have a quick rapid fire. Now this rapid fire is, you'll have to keep your answers very short, maybe 1 or 2 words. So first one, sir, fear or ego, which one destroys more leaders? Ego. One Fauji principle every CEO should learn. Mission first. Yes. What is more difficult, leading in a war or leading in peace? Leading in war, obviously. One mistake young Indians make while defining patriotism. They think that the only uniformed personnel are responsible for patriotism or nationalism. Sir, you have to complete this sentence. A person's real character is visible when ... When no one is watching and they still do the right thing. Beautiful, sir. So for me personally, I had goosebump moments in the conversation with you. To me, the most, I would say, a line जो आपने quote को use किया, that it is important to be nice. It is nice to be important. It is nice to be important, but it is more important to be nice. I think that will stay with me, and I'm sure a lot of our youngsters watching will definitely learn a lot. And thank you so much for sparing time. We really value this, and I'm sure your voice
will reach millions of Indians, and they would actually know what's happening at our borders and how, officers like you, leaders like you, not only shape the future of our country, but also inspire, millions of people henceforth to come in this field. Thank you so much, sir. Thank you, Alok. Thank you, Equentis. Thank you, sir. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.